related factors, है ना? So which channel we should use, that depends on some characteristics of the product. So what are the important product characteristics that affect the channel of distribution? So important product factors are whether the product is a इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट. मैंने पहले ही बताया था आपको, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज वेरी लेस एंड दे आर सेंट्रलाइज्ड, जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज्ड. So it is easy to directly approach them using salesmen or some other way. We can directly approach them. So in case of industrial product, we should use zero level channel or direct channel, or one level channel is sufficient. But in case of consumer products, their consumers are very large in number, geographically scattered. It is impossible, almost impossible, to directly approach each and every customer. Even if any company tries to approach each and every customer, it will be very costly, and also it will be fruitless, useless. So then we prefer indirect channels. So in case of industrial product, we use lesser channels, means zero channel or one level channel. And in case of industrial product, we have to use larger channels, that is two level channel or three level channel. Is it clear, Sairam? Sairam? Yes sir. Yes sir. दूसरा है इंडस्ट्रियल, वो तो इसमें मैंने समझा दिया आपको. पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये पर यूनिट वैल्यू इज वेरी ह्यूज. जैसे कार है और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, जहाँ पर फ्रिज है, ये भी मान सकते हैं ड्यूरेबल चेन में पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है. इन केस ऑफ हाई पर यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट वी कैन यूज डायरेक्ट मार्केटिंग. इनका डायरेक्ट मार्केटिंग रख सकते हैं, इनमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होता है. जिनकी पर यूनिट वैल्यू कम ज्यादा होती है, उनका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम है. सो वी कैन गो फॉर lesser channels, direct channel or one level channel. But if consumer per unit value is less, then we have to use the longer channels, two level channel or three level channels. तो ये दो company related factors हैं, okay, that we have to understand at the time of deciding the channels. दूसरा है company characteristics. Company characteristics क्या है? The company character include the financial strength of the company and the degree of control it want to have hold on the distribution network. If a company is financially sound, it has a lot of money, it can start its own exclusive showrooms, then company can think of direct marketing, है ना? वो अफोर्ड कर सकती है, इतनी सारी नेटवर्क ऑफ शॉप्स को बना सकती है, इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो कंपनी कैन थिंक ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. बट इफ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू डेवलप इट्स own marketing network, then they have to go for indirect channels. Second, control on channels. If you want to have full control on supply, if you want to have full control on channels, then definitely you should go for direct marketing. But if you are not worried about control on channels, then you can go for the indirect marketing. Okay. Then competitive factors. तीसरा जो factor है that affect the choice of channels, also affected by the channels selected by the competitors in the same industry. तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं. नॉर्मली कंपनीज फॉलो द सेम पॉलिसी एज देयर कंपटीटर्स आर डूइंग. जैसे मेडिसिन में आप देखते हैं सारी मेडिकल कंपनियां एमआर के थ्रू अपनी दवाइयां बेचवाती हैं, देखा होगा ना? कोई भी मेडिकल कंपनी है वो सारी की सारी एमआर के थ्रू अपना सेल करती है, मार्केटिंग करती है. तो दैट वी हैव टू फॉलो. सो इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट वी हैव टू फॉलो सेम चैनल्स एज आवर कॉम्पिटिटर्स आर यूजिंग. ओके, वो सबसे आसान तरीका होता है हमारे पास. और अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो यू कैन डू जस्ट अपोजिट व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग. वो फिर आपको इनोवेशन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क इन दैट. एंड मार्केट फैक्टर्स हैं. मार्केट फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट द channels of distribution. क्या दिया है इसमें? Size of market. If the size of market is very large, market size बहुत बड़ा है, definitely we have to go for the indirect channels. If size is market is small, then we can think of direct marketing. Geographical concentration of potential buyers and quantity purchase. जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं उनके जो बायर्स हैं दे आर जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज्ड, वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहते हैं.
जैसे आप देखने किसी भी शहर में जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट एरिया होता है वो सिटी के बाहर होता है, तो ट्रांसपोर्ट के जो मटेरियल खरीदने वाले हैं वो उसी अपने से एरिया में लिमिटेड होते हैं, तो दे कैन बी कॉन्टेक्टेड इजीली. So if buyers are geographically centralized and they purchase in big quantities, then direct marketing is possible. But if customers are geographically scattered and they purchase very less number of units, single unit, one unit, two unit, then definitely we have to go for the indirect channels. Direct channels will be very costly or it will not be possible to reach to every customer. Okay. Environmental factors. Environmental factors means economic conditions and legal constraints. Economic conditions जैसे अभी डिप्रेशन में इकोनॉमी चल रही है, तो पेंडेमिक है, कोरोना, वैसे ही लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो ऐसे टाइम में हमको शॉर्टर चैनल यूज करना चाहिए. तो इंटरमीडिएट प्रॉफिट कम होगा तो हम प्रोडक्ट सस्ता बेच पाएंगे कस्टमर्स को. इफ इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग, इट इज अंडर बूम पीरियड, बहुत प्रॉफिट है, तो हम इनडायरेक्ट चैनल्स का यूज करें. बट इन केस ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, इन केस ऑफ द इकोनॉमी द डिमांड इज फॉलिंग, देन वी शुड ट्राई टू यूज लेसर नंबर ऑफ चैनल्स, क्योंकि जितने कम चैनल यूज करेंगे उतना हमारा उनका प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा और प्राइस कम हम चार्ज कर पाएंगे कस्टमर से. और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं दैट वी हैव टू फॉलो एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो दीज आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब दूसरा कंपोनेंट है इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी आपको प्रोजेक्ट में पूरा लाना पड़ेगा. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस हाउ डू द गुड्स रीच फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. समझ में आ रहा है कि आपको मैं जो भागवत कथा सुना रहा हूँ आपको? सही राम? हाँ भाई, सिद्धार्थ है क्या? सिद्धार्थ? यस सर. समझ में को आ रहा है कि बस ऐसे में? नहीं सर आ रहे सर. आ रहा है. अब सर आप फिजिकल समझाया डिस्ट्रीब्यूशन मींस, नहीं हाँ, how do the physically goods move from one place to other place? Goods cannot walk. Goods अपने आप चल के तो जा नहीं सकती, तो उसके लिए हमको कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा. That is called physical distribution. So once goods are manufactured, packaged, branded, priced, and promoted, these must be made available to the consumers at the right place, in right quantity, and right time. तभी आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे. So you have to make the goods available at right place, in right quantity and at right time. जब कस्टमर को वो सामान चाहिए तब वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो उसको खरीदेगा और तभी आपका मार्केटिंग टारगेट अचीव हो सकता है. For example, a person convinced about the quality etc. of a product, say detergent bar, wants to purchase the same. अब वो मार्केट जाता है रिटेल आउटलेट पे और पूछता है कि वाला साबुन दे दो. If that product is not available in that shop, he may purchase some of the alternative brand available. तो वो नहाने के लिए तो इंतजार नहीं करेगा. अगर आपकी कंपनी का साबुन नहीं मिलेगा तो वो कोई दूसरा लेके आ जाएगा, तो उसमें नुकसान किसका हुआ? You lost a customer. So that is the failure of marketing efforts. So we should ensure it that whenever customer go to the market and he want to purchase our product is available in the market at the right place in right quantity. Okay. This way, is sure sale is lost because goods were not available at the right place where the customer wanted to purchase. This is an important responsibility of marketer to make the product physically available at a place where the customers would like them to buy. So this is the ultimate objective of physical distribution, that goods must be available at right place, in right quantity and at right time. Right place means the place nearest to the customer, from where he can purchase it easily. Right quantity means quantity which is demanded by the customers. Normally जितना लोग खरीदते हैं उतना quantity मिलना चाहिए, available हो हमेशा. And right time whenever they need. Okay. So that is the successful distribution network. The physical handling and movement of goods from place of production to place of distribution is referred as physical distribution, which is very important element of marketing. So physical distribution means physical movement of goods from the place of production to the place of consumption. Physical distribution covers all the activities required to physically move goods from manufacturer to the customer. तो क्या क्या आता है physical distribution में? All activities which are involved in making the goods available to the customers.
So whatever we need to do to send the goods from place of production to the place of consumption, all these activities are the part of physical movement or physical distribution. It involves transportation, warehousing, material handling, inventory control, etc. तो हम इसको डिस्कस करेंगे components of physical distribution. Again and again I am saying this is not for the board exam this year, but this is for your project, है ना. Physical distribution वाले जो component है वो syllabus में नहीं है इस बार फाइनल एग्जाम के लिए, बट इट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो आपको एक प्रोजेक्ट में लाने पड़ेंगे, ये सब चीजें आएंगी. तो पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है इन टाइपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप, ऑर्डर प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप. प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर वाया चैनल्स नंबर्स व्हाइल ऑर्डर्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो देखो क्या होता है, कस्टमर से कौन खरीदता है, रिटेलर. सॉरी, कस्टमर रिटेलर के पास जाता है, तो कस्टमर से ऑर्डर रिटेलर को मिलता है, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से. एक ट्रेडिशनल सिस्टम में जाएंगे तो रिटेलर ऑर्डर करता है होलसेलर को एंड होलसेलर परचेजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, सो होलसेलर गिव ऑर्डर्स इन एडवांस टू द मैन्युफैक्चरर. दिस वे ऑर्डर्स फ्लो. सो ए गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स. अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होता है, इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम होता है. जैसे ही ऑर्डर मिला वैसे ही अगर हम सामान दे पाते हैं कस्टमर को, दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और जहां कस्टमर को बहुत वेट करना पड़ेगा आफ्टर गिविंग द ऑर्डर, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एफिशिएंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इट इज देयर इज चांस दैट कस्टमर विल स्विच ओवर फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट. जहां भी उसको वेट करने का मौका मिलेगा तो वो फिर आपका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएगा. सो ये कहता है कि एक गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच गुड्स वुड रीच द कस्टमर लेट और रॉन्ग क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन. दिस कुड रिजल्ट इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन विद द डेंजर ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस एंड गुडविल. तो अगर आप टाइम पे नहीं दे पाएंगे उसको तो कस्टमर आपका लूज कर सकते हैं. वी कैन गो टू द सम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट. दूसरा कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन. सबको पता है, मींस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. तो आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा विच मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिलायबल. पहली बात तो अवेलेबिलिटी है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल है. इन सम एरियाज ट्रेन्स आर नॉट अवेलेबल, सो दे हैव टू डिपेंड ओनली ऑन रोडवेज. In some areas they have roadways and railways, so they can choose both. Some areas they also have waterways or airways, so that you have to decide, seeing the nature of product and cost of the transportation, you have to select an appropriate channel, but it must be efficient, so it hands the goods whenever they are needed. तीसरा important डिसीजन होता है वेयर हाउसिंग का, है ना, स्टोरिंग. So we have to decide how to or where to locate our warehouses, कितने warehouse रखेंगे, कहाँ रखेंगे, that we have to decide. इसमें दिया है warehousing refers to the act of sorting, storing and assorting product in order to create time utility. The basic purpose of warehousing activities is to arrange placement of goods and provide facility to store them. The need for warehousing arises because there may be difference between time of production and time of consumption. तो warehousing की जरूरत क्यों पड़ती है? Because whatever we are producing, that cannot be consumed on the same day, so that needs to be protected and keep safe until it is consumed. Generally, the efficiency of firm in serving its customer will depend on warehousing. तो कस्टमर को आप सामान टाइम पे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, that depends on efficiency of your warehouses. If you have sufficient stocks, then you can make the goods available on right time. But if you don't have the goods in stock, then it will be difficult to supply the goods at the right time. है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जितना ज्यादा स्टॉक करके रखेंगे, वेयर हाउसिंग रखेंगे. इसमें दिया है जनरली लार्जर द नंबर ऑफ वेयर हाउसेस फर्म एज लेसर वुड बी द टाइम टेकन इन सर्विंग कस्टमर्स. तो कस्टमर को उतनी जल्दी आप कन्विंस कर पाएंगे, बट इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड दैट it creates a lot of cost. ज्यादा वेयर हाउस की अपनी कॉस्ट भी होती है. So we have to maintain a balance between customer satisfaction and cost. तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, otherwise storage cost will be very high. That we have to see. फिर आता है inventory control. In case of inventory control, we have to
Inventory means stock. We have to decide how much stock we have to maintain. Because if we want that customer should remain satisfied, customer को हमेशा सामान मिले तो हमको स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा. But if we keep more stock, then there are many types of risk involved. अगर स्टॉक ज्यादा रखते हैं तो रिस्क भी है उसमें. सबसे बड़ी रिस्क तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी उससे. दूसरा हमारा ऑब्सोलेंस का चांसेस ज्यादा है. फैशन चेंज हो गया तो हमारा जो स्टॉक है आउटडेटेड हो जाएगा. इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो जो हमारी कैपिटल इन्वेस्ट है उसमें हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. सो दैट वी हैव टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ स्टॉक वी हैव टू मेंटेन. तो इसमें हम कुछ लेवल बना के रखते हैं स्टॉक में. एक हमारा होता है मिनिमम लेवल, एक होता है मैक्सिमम लेवल. मिनिमम लेवल मींस आवर स्टॉक शुड नॉट बी लेस देन दिस क्वांटिटी इन एनी कंडीशन. इससे कम हमारा स्टॉक नहीं होगा. और मैक्सिमम लेवल मींस इससे ज्यादा स्टॉक कभी नहीं करेंगे, है ना. सो वी हैव टू डिसाइड मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल. और एक होता है डेंजर लेवल. Danger level is the level where your stock immediately needs to be procured. तुरंत आपको स्टॉक लाना पड़ेगा, otherwise you will lose the customers. You will not be able to supply the goods to the customers. So minimum level, maximum level, and danger level we have to decide for stock, and we have to keep in mind the cost of storage or cost of warehousing or cost of inventory management and कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो दोनों हमारी हो जाए, कस्टमर की डिमांड भी हम पूरी कर पाए और कॉस्ट भी मिनिमम रहे. दैट मच इन्वेंटरी वी हैव टू स्टॉक. तो ये आपका फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो थर्ड एलिमेंट में ही आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें दो पार्ट है, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. चैनल्स में दो मेथड बताइए आपको, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. और फिजिकल मूवमेंट में ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंटरी कंट्रोल. चार उसके एलिमेंट है. सही राम. अब लास्ट एलिमेंट है जो है प्रमोशन मिक्स है ना. प्रमोशन मिक्स मींस व्हाट? प्रमोशन मींस सेल्स प्रमोशन एंड प्रमोटिंग द सेल्स. So promotion mix refer to combination of promotional tools used by an organization to achieve its communication objective. Means whatever strategies, what methods are used to promote the sales, that is called promotion mix. Here promotion is promotion of sales. So whatever techniques or methods are used by the company, that makes the promotion tools for the company, promotion mix for the company. Okay. Common जो इसमें डेफिनेशन दे, वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द मार्केटर टू इन्फॉर्म एंड परसुएड. जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना रिक्रूटमेंट में. रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड मोटिवेटिंग द prospective candidate to apply for the job. Same thing applies here. These promotion tools are the method of informing and motivating the buyer to purchase our product, है ना. तो बाद में आया वहां, तो रिक्रूटमेंट में तो बाद में आया कंसेप्ट. स्टार्ट तो उसकी यहीं से हुई थी, प्रोडक्ट से हुई थी. Now we are using this concept in many other areas. So it is a process of informing and motivating the buyers, prospective buyers, to purchase our product. तो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में हम दो काम करते हैं. एक तो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको that this product is available in the market, है ना. उसके फीचर्स बताते हैं, उसकी स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स जो है क्या क्या है. So that motivate the customer to buy. So promotion mix has three component, चार component है इसके. सॉरी, पहला component एडवर्टाइजिंग, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा है सेल्स प्रमोशन एंड चौथा है पब्लिसिटी. सो प्रमोशन मिक्स हैज 4 components. एडवर्टाइजिंग सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर. दूसरा है पर्सनल सेलिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दवाई के एजेंट आते हैं उनके थ्रू और भी कंपनी अपने एजेंट भेजती हैं, दैट इज पर्सनल सेलिंग. तीसरा है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, बाय वन गेट वन फ्री, 10% एक्स्ट्रा, दी ऑल आर कॉल्ड सेल्स प्रमोशन. और चौथा पब्लिसिटी, जो अपने आप हो जाती है, हम कर नहीं सकते. इट इज, ऐसा कहते हैं विज्ञापन किया जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है ना. सो इट्स पब्लिसिटी इज आल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. सो a company use all these 4 elements in different proportions, ना. कंपनी ये सारे एलिमेंट यूज करती हैं इन डिफरेंट प्रमोशन. कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस करती है, पर्सनल सेलिंग कम करती है. कुछ कंपनियां पर्सनल सेलिंग ज्यादा करती हैं, एडवर्टाइजमेंट कम रखती हैं. सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को सारी कंपनियां यूज करती हैं.
और पब्लिसिटी इज रेयर इंस्ट्रूमेंट, पब्लिसिटी आसान नहीं होती, वो रेयर इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट वी विल डिस्कस, यू विल कम टू नो, है ना. सो दीस आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ market promotion mix. Okay, these tools are also called elements of promotion mix and can be used in different combinations to achieve the goals of promotion. Consumer goods firm may use more advertising through mass media. जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में वो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा डिपेंड करती है. देखते हैं टेलीविजन जब भी आप खोलते हैं, कोई भी शो देखेंगे, कोई प्रोग्राम देखेंगे, तो सबसे ज्यादा टाइम तो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, और उसमें भी 90% जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट के होते हैं. इंडस्ट्रियल गुड्स वो ज्यादा पर्सनल सेलिंग के यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होते हैं, वहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग पॉसिबल है, नंबर ऑफ कस्टमर्स लेस है, सो दे डिपेंड ऑन पर्सनल सेलिंग. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में ज्यादा हम यूज करते हैं दो चीजों का, एक तो एडवर्टाइजमेंट का और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का, बाय वन गेट वन फ्री, ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट में होता है नॉर्मली, हालांकि ड्यूरेबल्स में भी करते हैं. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में पर्सनल सेलिंग ज्यादा होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करते हैं कम होता है, एडवर्टाइजमेंट का आता तो है लेकिन कम आता है. Then what combination of element is used by a firm will depend upon various factors, जैसे nature of market है, वो हमने पढ़ा, वो सब. अब इसमें पहला एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग. Okay, advertising is a process of informing and motivating the prospective buyers to purchase a product. What is advertisement? Advertisement is a process of informing and motivating the prospective buyers to purchase our product. Okay, so that is the advertising. It's a process of informing that this product is available in the market, so they will be aware of availability of this product, and motivating them. So sometimes we use our tagline or some other features to motivate the customer. Surf excel, दाग ढूंढते रह जाओगे, है ना. So different types of motivators are used to motivate the buyer. Sometimes we show competitive strength of our product. हमारा प्रोडक्ट बाकी लोगों से अच्छा है इसलिए हमारा प्रोडक्ट खरीदिए. Sometimes we go for price differentiation कि हमारा प्रोडक्ट सबसे सस्ता है, so that's why you have to purchase our product. So many tools we use, many strategies we use to motivate the customer. But ultimately, it's a process of informing and motivating the prospective buyers to buy our product. Okay. It is considered that buyers do not buy sufficiently, adequately until they are motivated to buy. So buyers either do not buy or they do not buy adequately until they are motivated. उनकी जो इच्छाएं वो जगानी पड़ती हैं, है ना, तब वो मोटिवेट होते हैं खरीदने के लिए. अदरवाइज उनकी जो फीलिंग्स है, किसी चीज की जरूरत है, उनको एहसास ही नहीं होता जरूरत का, तो उनको एहसास कराना पड़ता है कि आपको इस चीज की जरूरत है. जैसे आप देखते हैं कोई कुकिंग ऑयल का जो आता है एडवर्टाइजमेंट, उसमें वो वाइफ को मोटिवेट करता है कि आपके हस्बैंड को तो बड़ा खतरा है, हार्ट अटैक से आ सकता है, तो उसको एक कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल नहीं खिलाएंगी तब तक तो बड़ा खतरा है उसको, तो उसकी वाइफ तुरंत मार्केट में जाएगी और वो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल ढूंढ के लाएगी, इस बात तो ही खिलाना है. So that is arousing the needs in the mind of the people. That is the main focus of advertisement. उसकी जो कहीं थोड़ी बहुत भी जरूरत थी उसको उसकी डिमांड में कन्वर्ट कर देना. That is the focus of advertisement. So we make the people sensitive toward the need of the product and they start purchasing. बहुत सारे हम देखते हैं ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग होती है इसमें, तो दे मेक द पीपल इमोशनल, and out of these emotions people are ready to spend money. Okay, so that is the main function of advertising. So we generally come across hundreds of advertising messages every day which tell us about various products such as toilet soap, detergent powder, soft drinks and services such as hotels, insurance policies, etc. आप कोई भी प्रोग्राम देख लो, उसमें कम से कम 10-20 एडवर्टाइजमेंट तो आप देख ही लेते हैं. इट्स द मोस्ट commonly used tools of promotion, है ना. It is an impersonal form of communication. ये सबसे important part क्या है, इसका characteristic क्या है, advertising is impersonal form and there is no face-to-face interaction between company, advertiser and customer. So it's called impersonal form of communication. One-way communication है. Advertising is a one-way communication or impersonal form of communication and which is paid for by the marketer. It is a paid form. Advertisement जब भी आप कराएंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा. जिस चैनल का यूज करेंगे, you have to pay price for advertising. It's not free of cost. So पहला फीचर एडवर्टाइजिंग का, it's a impersonal form
there is no direct or face-to-face interaction between advertiser or company and the customer. Second, it's a paid form, and its sponsor is identified. किसने advertisement कराया वो identify होता है, उसमें आता है this program is sponsored by this company, so sponsor is identified. Promote, है ना, marketer to promote some goods or service. The most common modes क्या है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है टीवी एडवर्टाइजिंग. आजकल जो सबसे कॉमन चल रहा है वो है मीडिया एडवर्टाइजिंग या टीवी एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो. तो सबसे ज्यादा जो चल रहा है एट प्रेजेंट वो तो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग है. बाकी मैगजीन्स में भी देते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देते हैं, रेडियो पर भी आता है, बट दैट इज नॉट दैट मच पॉपुलर. मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इज टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, उसके बाद आता है आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, फिर मैगजीन्स, फिर रेडियो वाला. रेडियो पे भी आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स. तो क्या क्या फीचर्स हैं एडवर्टाइजिंग के? पेड फॉर्म में भी आपको पता है, इट इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. बड़ा महंगा आता है. जो प्राइम टाइम होता है टीवी का, प्राइम टाइम बोलते हैं शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक. रात में जो 8 से 10 का टाइम होता है दैट इज कॉल्ड प्राइम टाइम. सो प्राइम टाइम इज वेरी कॉस्टली. इस समय सबसे महंगे एडवर्टाइजमेंट होते हैं because the number of viewers और television viewers is largest at this time. सबसे ज्यादा लोग टीवी देखते हैं इस समय में, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं, भाई हाउस वाइफ वो ही फ्री हो जाती हैं, और जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं वो सब अपने काम से वापस आते हैं. So 8 PM to 10 PM is called as prime time, and at this time advertising is very costly. उस समय एडवर्टाइजमेंट बड़े महंगे होते हैं सारे के सारे. ठीक है. इम्पर्सनलिटी है दूसरा कैरेक्टर. नो face to face interaction between buyer and seller, so no personal interaction, इसलिए इसको बोलते हैं impersonal form. और तीसरा इसका फीचर है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है. किसने आइडेंटिफाइड दिया है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कंपनी और मैन्युफैक्चरर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, सो इट इज आइडेंटिफाइड. अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के? सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एडवर्टाइजिंग वो है मास रीच. एडवर्टाइजमेंट सेंड द मैसेज टू करोड्स ऑफ पीपल. आप इमेजिन करो अगर आप नेशनल चैनल पे कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, सो दैट एडवर्टाइजमेंट मैसेज रीचेज टू द होल कंट्री. सो इट कवर्स लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और जैसे जैसे टेलीविजन का रीच बढ़ा है, उसका यूज बढ़ा है, वैसे वैसे इसका स्पेस भी बढ़ता गया. सो नाउ यू कैन इमेजिन इट इज यूज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब तो शायद ही कोई पार्ट होगा कंट्री का जहाँ इवन इन विलेजेस आल्सो पीपल आर यूजिंग टेलीविजन. So that message covers the wide range of the customers. That is the biggest advantage of advertising. TV advertisement, चाहे वो बिना पढ़े लिखे लोग हो चाहे पढ़े लिखे लोगों को, दोनों इसका यूज कर सकते हैं. And it covers all areas. Enhancing customer satisfaction and confidence. How does advertisement enhance the customer confidence? That customer is known and the product is known to the customer. वो unaware नहीं है. When he gets the information through television advertisement or other advertisement, he is aware of the product, he know the product, है ना. So इसलिए वो जब मार्केट में जाता है तो उसको पता होता है कि कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट आ रहे हैं वाले, उसकी प्राइस कितनी होती है, क्या क्या फीचर्स हैं. So that boosts the confidence of the customer. He is not ignorant customer, he is educated customer or known customer. He knows the different information about that product. एक्सप्रेसिवनेस है तीसरा एडवर्टाइजमेंट का फायदा आ गया. आजकल जो नया टेक्नोलॉजी आई है 3D टेक्नोलॉजी, दैट मेक्स द एडवर्टाइजमेंट वेरी एक्सप्रेसिव. यू कैन शो ऑल द डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट, एवरीथिंग यू कैन शो, इवन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन शो थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग. दैट गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, है ना. दैट इज द एक्सप्रेसिवनेस, दैट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स आल्सो. और इकोनॉमी है, देखा जाए तो बहुत महंगा है. अगर आप अमाउंट कंपेयर करोगे तो इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स नॉट इकोनॉमिकल. बट इफ यू विल फाइंड पर यूनिट कॉस्ट, कितने लोगों को कवर किया उसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे सस्ता जो मीडिया है वो एडवर्टाइजिंग है. इस पर जो अमाउंट देखोगे तो वेरी ह्यूज बजट. बट इफ यू विल फाइंड आउट पर पर्सन कॉस्ट, सेल्समैन अगर कोई जाता है तो 100 लोगों को कॉन्टेक्ट करेगा एक महीने में, और 100 लोगों को कॉन्टेक्ट किया, उसकी सैलरी 20,000 रुपए सपोज करो, तो एक आदमी को कांटेक्ट करने की कॉस्ट 20 रुपए आ गई. लेकिन टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो पता चला कि उसने 120 करोड़ लोग, कम से कम 50 करोड़ लोग को तो कवर किया. 50 करोड़ लोग को कवर किया तो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज लेस. सो फ्रॉम पर पर्सन कॉस्ट इज वेरी लेस इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अगर आप अमाउंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत महंगा.
इसकी लिमिटेशंस क्या है? लेस फोर्सफुल है, इट इज नॉट एज फोर्सफुल एज पर्सनल सेलिंग इज. What happens in personal selling? Salesman is there, customer is there. So salesman uses different tricks to convince the customer to buy the product. वो सामने सामने डिस्कशन हो रहा है, तो सेल्समैन अपनी सारी ताकत लगाता है कस्टमर को कन्विंस करने में, है ना. एक्सप्लेन चेंज करेगा, अपना एक्सप्लेनेशन चेंज करेगा, कुछ और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. से प्लेन मैसेज गिवन टू ऑल कस्टमर्स irrespective of their different types of intensity of needs or different nature or different buying priorities. So common message is given to all the buyers. That's why advertisement is less forceful as compared to personal selling. Personal selling is more forceful as compared to advertisement. Lack of feedback है, एक ये भी इसका ड्रॉबैक है. ये भी comparative to personal selling है. What customers want in the product, why do they like a product, why don't they like a product, that we don't know by way of advertisement. Advertisement से आपको कुछ नहीं मालूम चलता है. In case of personal selling, salesman get the feedback of the customer, what changes they want in the product, why don't they like this product. That all information can be taken by the salesman from the customers, and that is very important information for company. So that feedback is not possible in case of a advertisement. It's a one-way communication, so that's why feedback is not possible. Inflexibility है. Inflexibility means once a advertisement slide or movie or picture can be made, it cannot be changed. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? सेल्समैन देखता है कस्टमर की चॉइस, कस्टमर का इंटरेस्ट देखता है. अगर उसको लगता है कि कस्टमर खरीदेगा, तैयार हो सकता है, तो वो अपना डिस्कशन आगे बढ़ाता, नहीं तो डिस्कशन कम कर देता है. So there is flexibility in communication. But in case of advertisement, a standard message is given to all the customers. So there is no flexibility. एक जो पिक्चर बन गई आपकी एडवर्टाइजमेंट की, वो क्लिप पूरी दिखानी है हर बार में, चाहे कस्टमर को इंटरेस्ट हो उसमें, चाहे नहीं इंटरेस्ट हो. That is not possible to change or to curtail it in between. और चौथा है लो इफेक्टिवनेस है ना. इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं आजकल, people are getting bored. So what happens whenever advertisement start coming, they switch over from one channel to other channel. They are not interested in seeing the advertisements. So that way effectiveness of these advertisements is very low, है ना. तो जो इफेक्ट आता है वो नहीं आता, जो टारगेट अचीव होना चाहिए वो नहीं होता इसमें. That is the low effectiveness of the advertisements. So they are losing their importance, है ना. जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. सेम थिंग इज हैपनिंग विद एडवर्टाइजमेंट्स. कई बार तो लोग कहते हैं बोर कर दिया इन लोगों ने, और दे समटाइम स्टार्ट इरिटेटिंग बाय सीइंग द सेम एडवर्टाइजमेंट, है ना. अब इसमें अगला टॉपिक है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग. इसमें दो पार्ट हैं. सम पीपल ऑब्जेक्ट और दे से समथिंग नेगेटिव अबाउट द एडवर्टाइजमेंट्स, एंड देयर इज अदर ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु जस्टिफाई द एडवर्टाइजमेंट्स. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग. तो अभी तो टाइम हो रहा है, हम तो अगली क्लास में पढ़ेंगे अभी ऑब्जेक्शन, व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस एंड व्हाट इज द डिफेंस अगेंस्ट दीज ऑब्जेक्शंस. तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस लोग लगाते हैं एडवर्टाइजिंग की, और उसके अगेंस्ट में क्या क्या डिफेंस है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो बस अब दो क्लास में हमारा ये मार्केटिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम कस्टमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे. बहुत छोटा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को 9th 10th क्लास में. 10th में पढ़ा होगा शायद आपने कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वैसे भी कुछ पार्ट और हटा दिया इसका, तो और भी छोटा हो गया है चैप्टर इस बार. पहले से ही छोटा है, लेकिन कुछ पार्ट उसके और डिलीट कर दिए, तो बहुत छोटा चैप्टर है. तो ये दोनों एक ही यूनिट में है. मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक यूनिट है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एक यूनिट है. तो दो यूनिट है सेकंड पार्ट में हमारी. तो सेकंड पार्ट का जो सेकंड यूनिट है उसमें दो चैप्टर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है. So this we will discuss in the next class. So if you want to ask anything, you can ask. Otherwise, we will wind up the class. हाँ जी, साई राम. Anything you wish to ask? Okay, so let us have Shanti Path, then we will leave. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram.
सायराम सर। सायराम सायराम